Hello everyone, welcome to Physics Wedge. Today we will be talking about some numericals and conceptuals related to EMI, electromagnetic induction, and we will be discussing about some conceptuals related to self-induction, mutual induction. So this is what we are going to do today. Okay, let's start. We are starting with a very simple question. There is a magnetic flux. Now I will suggest you to note down these data so that you can utilize it afterwards. Okay, so there is magnetic flux which is given phi, and it is given 5t square plus 10t plus 5. Okay, and it is given in milliweber. Okay, it is given in milliweber. ये milliweber में दिया है. Calculate the EMF induced in the loop. You have to calculate the induced EMF in the loop at t equals to 5 seconds. Okay, तो EMF induced आपको फाइंड करना है t equals to 5 सेकेंड पे, और ये milliweber में आपको दिया हुआ है. ठीक है, so this is what the question is. Now let us try to first understand that what is asked and later on how to solve it. Okay, ध्यान से समझिए. आपको फ्लक्स गिवन है और फ्लक्स जो है वह टाइम का फंक्शन है. Okay, as you can see that it is function of time and it is asked that what is the EMF. अब आप समझने का प्रयास कीजिए. फ्लक्स टाइम का फंक्शन है और EMF t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए कि EMF जो है वह फ्लक्स पर किस तरह डिपेंड करता है. और हम सभी को पता है जो फैराडेज लॉ है, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी, ये होता है. ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस डी बाय डी टी ऑफ फाई. एंड व्हाट इज फाई? फाई इज 5t square plus 10t plus 5. Okay, so this is the EMF. Now basically we are concerned with the magnitude of it. Why? Because you know that negative sign shows that the EMF is induced in such a manner that it opposes its own cause, that we have studied. Okay, we have already studied it. So in that way we can say that it is positive, right? So EMF is equal to, now d by dt of 5t square, 5 is constant, differentiation of t square. Differentiation of t square is 2t plus 10. Differentiation of t with respect to t is 1 plus differentiation of 5 is 0. So EMF is 5 2s are 10t plus 10. Okay, this is the value of EMF in terms of time. Okay, you have to find it at t equals to 5 second. Okay, one more thing which we have to add in this. Do remember that this flux is in milliweber. So that has to be changed into Weber, and in order to change it in Weber, what we are supposed to do, we have to multiply this by 10 to the power minus 3. Okay, so here we will multiply it by 10 to the power minus 3. Here also we will multiply it by 10 to the power minus 3. And you know why? Because now we have converted into Weber, from milliweber to Weber. You know milli stands for 10 to the power minus 3. Okay, now at t equals to 5 seconds, so what you will do? Okay, of course it is multiplied by 10 to the power minus 3. Okay, now EMF at t equals to 5. Okay, so substitute t equals to 5 here. 10 into 5 plus 10 multiplied by 10 to the power minus 3. So that makes it 50 plus 10 60 into 10 to the power minus 3. Okay, and this is 0.06 volt. Okay, why I am writing volt? Because you know that
EMF is potential difference. Okay, we know that EMF is potential difference, so it is 0.06 volt, and this is what is the answer for this particular question. I hope you are able to understand this explanation. Okay, let's see the next question now. Question says that a wheel with 10 metallic spokes. Okay, there is a wheel which has 10 metallic spokes, each 0.5 meter long. So there is a wheel. Okay, there is a wheel and there are 10 metallic spokes. Okay, there are 10 metallic spokes. Okay, like this 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so like this 10 are there. I hope that I didn't make more than that. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and one more. Okay, in fact I should have gone like this 1, 2, 3, 4, 5, okay, 6, 7, 8, 9, 10, like this. Okay, so they have 10 metallic spokes. Okay, 10 metallic spokes are there. Is rotated with a speed of 120 rpm. So it is rotated with a speed of 120 rpm. It is mentioned in the question that it is rotated with a speed of 120 rpm, rotation per minute. Okay, basically I have made more than 10, as you can actually see. So what you have to do is what we did earlier, because from Excel we count these spokes, no? So it will be like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, okay, 9, and let it be 10. Okay, right? So like this it is there. Now 10 spokes are there and they are rotated, wheel is rotated 120 rpm in a plane normal to Earth's magnetic field at the place. Okay, normal to Earth's magnetic field. So if magnetic field is like this, normal to this is, it is rotated. If the magnitude of the field is 0.40 Gauss, so magnetic field's magnitude is given 0.40 Gauss. This is the magnitude of the magnetic field which is given. Okay, what is the induced EMF between the axle and the rim of the wheel? So you have to determine the magnetic EMF. Okay, what is the EMF which is induced, okay, between the axle and the wheel? This is what we have to determine. Okay, so let's see first what is given to us. Okay, what do we have and what we have to actually determine. Okay, and then we will try to actually figure it out that how can we proceed for that. Okay, so let's think about it. See, first you have number of spokes. So write down, given number of spokes, 10 spokes are there. Okay, there are 10 spokes and length is given. How much length is given? Length of each spoke is given 0.5 meter. Very good. So basically this is not length, this is the radius. Radius is given 0.5 meter. Okay, radius. Then what else? Frequency. Number of rotations per second means the frequency. So you can say that this is n. N are the number of rotations per minute. So you can convert into per second. 120 divided by 60 makes it 2 rotations per second. Okay, this is the frequency, right? This is the frequency. Now magnetic field is 0.40 Gauss, and this 0.40 Gauss has to be converted into Tesla. 0.4 into 10 to the power minus, if I am not wrong, minus 4 has to be done. Minus 4 Tesla. So this is what is the value of the magnetic field. Okay, so that is given. Now you have to determine the EMF.
Okay, so basically see there is a spoke. This is actually a conductor. Okay, and it is moving, right? It is moving. So there will be motional EMF because it is moving in a perpendicular. It is moving in a perpendicular magnetic field. If it is moving in a perpendicular magnetic field, so we can actually see that this is a motional EMF. देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी इस तरफ, है ना, ऐसे अंदर, और ये घूम रहा है, तो यहाँ पर एक कंडक्टर है जो घूम रहा है ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड पे कंप्लीट एक्सपोजर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है वो. सो यू कैन राइट that motional EMF is BVM. Okay, very easily you can conclude here that motional EMF is BVM. Magnetic field is given. We have to find V. We don't know. Why we don't know I will tell you. And L is what? L is the length. Length is this 0.5 meter. Okay. Try to understand. This is the spoke and it is moving like this. Now the point is magnetic field is here vertically inward like this and it is moving like this. So when it is moving like this, different points, because they are moving on a circular track, so different points they have different velocities. ये point तो rest में ही होगा, है ना, लेकिन ये point इसकी velocity अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी सबकी velocities अलग अलग होंगी. और अगर velocities अलग अलग हैं तो ये v कैसे determine करें, ये प्रश्न आ गया. तो देखिए velocities जो हैं वो कैसे निकालते हैं. तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं, इसकी velocity 0 है और इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी v है मान लेते हैं, ठीक है. तो आप क्या करें, इसका एवरेज ले लेते हैं सिंपल, तो हमें इस पूरे इसकी एवरेज वेलोसिटी पता चल जाएगी, ठीक है. तो एवरेज वेलोसिटी v डैश कर देते हैं, वो कैसे लेंगे, तो 0 प्लस इसकी वेलोसिटी v डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस v बाय 2. अब इट इज इक्वल्स टू व्हाट, देखिए 0 तो हो गया, इसकी वेलोसिटी 0 और v जो है ये लीनियर वेलोसिटी की बात हो रही है, ध्यान से समझिएगा. दिस इज द लीनियर वेलोसिटी व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट. और लीनियर वेलोसिटी की अगर बात हो रही है तो लीनियर वेलोसिटी होती है ओमेगा आर, याद रखना. तो लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी क्या, ओमेगा आर. आर क्या है, आर लेंथ है इसकी, आर यानी लेंथ हो जाएगी और डिवाइडेड बाय 2. कहने का मतलब है कि ये ओमेगा वी के प्लेस पे ओमेगा लिख देंगे हम, ये हो जाएगा बी ओमेगा आर. ओके, आर मीन्स एल है ना, आर मतलब एल ही है, एल ही लिख देते हैं, काहे कंफ्यूजन करें. ओमेगा एल और ये एक और एल है और डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है. बहुत बढ़िया. तो ये हो गया क्या, ये हो गया 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये ईएमएफ आ गया. अब कहने की बात ये हो गई भाई कि ओमेगा क्या है, ओमेगा है 2 पाई न्यू, आपको पता है ओमेगा है 2 पाई और न्यू, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है n, ओके, इनटू एल स्क्वायर बराबर है. अब आपके पास देखिए 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए. अब n आपके पास है क्या, बिल्कुल है n, ये रहा 10. अच्छा नहीं, ये तो सॉरी, ये तो n फ्रीक्वेंसी है, ये वाली है ना, ये है 2. तो ये जो सारा गणित हमने जमाया है, देखिए ये क्या आ गया, पाई बी एन एल स्क्वायर. ये पूरा एक स्पोक के लिए हुआ है ना. दिस इज फॉर अ सिंगल स्पोक, लेकिन हमारे पास कितनी है, 10 स्पोक्स हैं. तो इसका अगर टोटल ईएमएफ की बात कर रहे हैं, अगर टोटल निकालना है तो आपको इसको 10 टाइम्स करना होगा, 10 टाइम्स पाई बी एन एल स्क्वायर. अब ये सारी वैल्यूज आपके पास हैं, ये सारी वैल्यूज आप इसमें क्या कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, है ना. सारी वैल्यूज आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और आपको जो है यह ईएमएफ मिल जाएगा, किसमें, वोल्ट्स में मिल जाएगा, है ना. यू विल गेट द ईएमएफ इन वोल्ट्स, ठीक है. इसके आगे मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं आंसर जरूर बता देता हूँ. इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली आएगा 6 × 10⁻⁻5 वोल्ट्स. आप इसकी वैल्यूज रख के सॉल्व कर लीजिएगा. मैंने कॉन्सेप्ट आपके साथ में डिस्कस कर ली है ना. इसकी वैल्यू आप वैल्यूज रखकर सॉल्व करेंगे, आपको यह मिल जाएगा, ठीक है. I hope it is clear to you. Now we will be discussing the next question. Okay, question is like this. See, a metallic rod of 1 meter length is rotated with a frequency of 50 revolution per second. Okay, so there is a metallic rod.
there is a metallic rod, right? There is a metallic rod. There is a metallic rod and of 1 meter length. उसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर, ठीक है. And it is rotated with a frequency, right? It is rotated with a frequency of 50 revolutions per second. Okay. So there is a metallic rod of 1 meter length and it is rotated with a frequency of 50 revolution per second. Okay, so there is a metallic rod and it is rotated. It is rotated like this. Okay, so I will do one thing. I will first rotate it. Okay, there will be a circle, right? And it is rotated with a frequency of 50 revolutions per second. Okay, so frequency is given 50 revolutions per second. This is the frequency which is given, right? With one end hinged at the center. तो इसको यहाँ पर hinged कर दिया. hinged कर दिया मतलब fix कर दिया. And the other end at the circumference of circular metallic ring. और दूसरा end को क्या किया है? एक circumference of a circular metallic ring, ये ऐसी circular metallic ring है, उस पर उसको fix किया. Of radius 1 meter, ठीक है. About an axis passing through the center and perpendicular plane of the ring. Okay. A constant uniform magnetic field of 1 Tesla parallel to the axis is present everywhere. तो ये एक ऐसी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है जो कि हर तरफ प्रेजेंट है ना, यहाँ सब तरफ प्रेजेंट है इस तरह से, ठीक है, सब तरफ है, ठीक है. मैंने अंदर नहीं बनाया है पर ये पूरा है, यहाँ पर भी है. ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है. ये गिवन है, ठीक है. इट इज गिवन, इट इज गिवन. सो व्हाट इज आस्क्ड? A constant uniform magnetic field of 1 Tesla parallel to the axis is present everywhere. What is the EMF between the center and the metallic ring? देखिए क्वेश्चन वही है, वो एक सिंगल स्पोक जैसा ही तो क्वेश्चन है इसमें, और उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस हमें दिखाई नहीं दे रहा है. पर यहाँ और हाँ दिख रहा है कि कोई अंतर नहीं दिख रहा है. मुझे तो कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, सेम ही लग रहा है मुझे तो इनफैक्ट, ठीक है. तो हमने उस समय क्या किया था? EMF इक्वल्स टू BVL लिखा था ना, और क्या किया था? B तो मैग्नेटिक फील्ड है. V क्या हो जाएगा? 0 प्लस V/2 हो जाएगा, इंटू L हो जाएगा. और B इंटू V को क्या लिख देंगे? ओमेगा L इंटू L/2, ठीक है. ओमेगा को 2 पाई न्यू लिख देंगे तो ये हो जाएगा इट इज इक्वल्स टू B इंटू 2 पाई न्यू, ठीक है. 2 पाई न्यू L स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2. इसको कर दीजिए कैंसिल. B पाई न्यू L स्क्वायर. नाउ एवरीथिंग यू हैव, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है. इनफैक्ट मुझे लगता है इसमें तो टेस्ला में ही दी है, 1 टेस्ला है. पाई की वैल्यू है, न्यू फ्रीक्वेंसी गिवन है. न्यू ये इसको न्यू कर देते हैं, कोई बात नहीं, न्यू कर देते हैं 50 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड. और लेंथ जो है वह भी गिवन है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग लेंथ इज आल्सो गिवन, ठीक है ना. लेंथ इज आल्सो गिवन, 1 मीटर दिया हुआ. सारी वैल्यूज है, बस इसको रख दीजिए और ये जो है वोल्ट में आ जाएगा. तो ये बेसिकली प्रीवियस क्वेश्चन ही था, है ना. हमने डिस्कस कर लिया पर ये प्रीवियस क्वेश्चन ही था, कोई ज़रूरत नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन था ये तो, ठीक है. तो प्रीवियस क्वेश्चन ही था, हमने डिस्कस कर लिया. बस पिछले इसमें हमने नंबर ऑफ स्पोक्स जो थे वो 10 गिवन थे तो उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया था, सही है ना. तो बाकी तो खैर कॉन्सेप्ट आपको सभी को समझ में आ गई है, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत अब नहीं रहेगी, ठीक है ना. तो ये हो गया. अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, ठीक है. चलिए इससे रिलेटेड EMF से ही रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है ये. हाँ थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन इससे आपको EMF की कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी और क्लियर हो जाएंगी. थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, धैर्य रखना, है ना. पहले मैं ड्रॉ करूँगा और उसके बाद में डिस्कस करूँगा, ठीक है. तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा हुआ भी है. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा. एक ऐसा एक मेटालिक फ्रेम गिवन है, इस तरह से एक मेटालिक फ्रेम है, ठीक है. और आर्म PQ ऑफ द रेक्टेंगुलर कंडक्टर इज मूव्ड फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू राइट साइड. तो ये x इक्वल्स टू 0 है,
ठीक है, और यहाँ से ये आर्म PQ है, यहाँ पर ऐसी एक मेटेलिक आर्म है जो कि मूवेबल आर्म है, जो कि क्या है, मूवेबल आर्म है PQ, और ये मूवेबल है ना, ये मूव कर सकती है जैसे अपन ने डिस्कस किया है, ठीक है। इट इज मूव टुवर्ड्स राइट, द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू b। अब x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू b, यहाँ से यहाँ तक में जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ध्यान दीजिएगा, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू b तक ही है, ये 0 है, और यहाँ ये जो पॉइंट है ये x इक्वल्स टू b तक है, ठीक है। और यहाँ पर ये पूरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड x इक्वल्स टू b तक क्या है, ये प्रेजेंट है ना, x इक्वल्स टू b तक ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये प्रेजेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं, एंड इज 0 फॉर x इज ग्रेटर देन b, और x इज ग्रेटर देन b के लिए मैग्नेटिक फील्ड 0 ही है ना, ये गिवन है कि ये 0 है, ठीक है। ओनली द आर्म PQ possess substantial resistance स्मॉल r, तो ये जो PQ है इसी का रेजिस्टेंस है स्मॉल r, बाकी किसी का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फ्रेम का रेजिस्टेंस है ही नहीं, है ना, फ्रेम जो है, फ्रेम का रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, फ्रेम का रेजिस्टेंस नहीं। कंसीडर द सिचुएशन व्हेन द आर्म PQ इज पुल्ड आउटवर्ड्स फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 2b। अब इसको 0 से आप ये आर्म जो है PQ, इसको यहाँ से ऐसे लेके जाते हैं, ऐसे लेके जाते हैं, खसका खसका के कहाँ तक लेके आते हैं, यहाँ तक लेके आते हैं। देखिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, और ये जो पॉइंट है ये है क्या, x इक्वल्स टू 2b, ये पॉइंट गिवन है x इक्वल्स टू 2b, ठीक है, x इक्वल्स टू 2b ये पॉइंट गिवन है, एंड इज देन मूव बैक टू x इक्वल्स टू 0, यहाँ तक लेके जाते हैं और फिर वापस लेके आते हैं, ठीक है, ये प्रक्रिया हम कर रहे हैं। एंड इज देन मूव बैक टू x इक्वल्स टू 0 विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, विद कांस्टेंट स्पीड v, स्पीड उसकी दी है कांस्टेंट v, ठीक है, विद कांस्टेंट स्पीड v, अच्छी बात है। ऑब्टेन एक्सप्रेशंस फॉर द फ्लक्स, द इंड्यूस्ड ईएमएफ, द फोर्स नेसेसरी टू पुल द आर्म, मतलब क्या क्या निकालना है, देखिए फ्लक्स की एक्सप्रेशन निकालना है आपको, इंड्यूस्ड ईएमएफ की एक्सप्रेशन निकालना है, इसके अलावा फोर्स के लिए निकालना है, पावर डिसिपिएटेड के लिए निकालना है, ये सारा आपको क्या करना है, फाइंड करना, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है, इसके ग्राफ्स भी बनाना है आपको, यू हैव टू प्लॉट ग्राफ्स फॉर दिस, ये है प्रश्न। तो जैसा मैंने कहा था कि थोड़ा धैर्य आपको रखना पड़ेगा, प्रश्न को पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो उन्होंने बोला फ्लक्स के लिए एक्सप्रेशन निकालो, और एक्सप्रेशन निकालने के बाद आप उसका ग्राफ भी प्लॉट करो, ठीक है। तो चलिए, प्रश्न समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न ऐसा है कि ये एक फ्रेम दी हुई है, रेक्टेंगुलर फ्रेम है, इसकी एक आर्म है PQ जो कि मूवेबल है, वो भी कंडक्टिंग आर्म है, और वो क्या है, मूवेबल आर्म है, वो मूव कर सकती है। उसको हम क्या करते हैं, उसको हम मूव कर रहे हैं x इक्वल्स टू, उसको हम मूव कर रहे हैं x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 2b तक, फिर उसको लेकर आ रहे हैं वापस यहाँ तक, ये हमने प्रोसेस की है। ऐसा करने के दौरान आप देखेंगे कि x इक्वल्स टू b तक जो है वो क्या है, इसका मैग्नेटिक फील्ड सिचुएटेड है, इसके बाद में इसके बियॉन्ड मैग्नेटिक फील्ड सिचुएटेड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है इसमें, ठीक है, ये आपको गिवन है। अब पूछा क्या है, पूछा ये है कि आप फ्लक्स बताइए कि फ्लक्स क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम फ्लक्स के लिए अगर बात कर रहे हैं तो पहले तो फील्ड के लिए बात करें, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर दो तरीके से चल रही है, ठीक है। पहला क्या है, तो पहला जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वह एग्जिस्ट कर रही है तब जब x की वैल्यू जो है वो 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू b, है ना। 0 से b तक जो है मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट गिवन है, ठीक है ना, यही बोला है ना कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है 0 से लेकर b तक, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मान लेते हैं b ही है, पर ये इसके बीच में, और इसके बियॉन्ड मतलब जब x इज ग्रेटर देन b हो जाता है तो उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, सडनली 0 हो जाती है। ये एक इंफॉर्मेशन है जो कि हमें पता होना चाहिए। अच्छा, इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये मिलेगा कि जब हम फ्लक्स निकालने जाएंगे तो फ्लक्स होता है b इंटू ए। अब आप इसको डायरेक्ट एसोसिएट कर सकते हैं। देखिए अगर आप फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो देखिए फ्लक्स में दो केसेस आ जाएंगे, आप उस दो केसेस को देखिए।
पहला केस क्या होगा, जब x 0 इज लेस और इक्वल टू x इज लेस और इक्वल टू b, और दूसरा केस होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन b। अब देखिए जब x ग्रेटर देन b होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए फ्लक्स होता है b इंटू ए। अब भाई यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो फ्लक्स कहाँ से आएगा, समझ में आई बात, तो इसलिए यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा। फिर हम इसकी बात करते हैं 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू b। इसकी अगर हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, कि यहाँ पर जो है ये b इंटू ए है, ठीक है ना। अब b तो देखिए, b तो कैपिटल B लिख दिया हमने, और एरिया जो है, ठीक है, एरिया जो है एरिया डेफिनेटली वेरी करेगा, ठीक है ना, एरिया डेफिनेटली क्या करेगा, वेरी करेगा। तो फ्लक्स जो होगा वह कैसे, अब वो यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर वो मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो डेफिनेटली एरिया कैसे होगा, लेंथ मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है, l है, और ये वाला जो है ये कहीं ना कहीं यहाँ होगा पहले, फिर यहाँ होगा, तो ये x मान लेते हैं इसको, तो एरिया हो जाएगा b इंटू एल इंटू एक्स। एल इंटू एक्स क्या बता रहा है, ये एरिया, जैसे जब ये यहाँ था, देखिए समझना, जैसे अब ये यहाँ था, यहाँ है मान लीजिए, है ना, ये तो पोजीशन है इसकी पी क्यू, यहाँ पर जब था तो इतना एरिया था, यहाँ पर जब आया तो ये पूरा एरिया हो गया, यहाँ पे आया तो ये पूरा, मतलब ये x पर डिपेंडेंट है, यहाँ इस वाली वैल्यू x पर डिपेंडेंट है एरिया, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करा है, इसको b इंटू एल इंटू एक्स लिखा है, ठीक है। ये हो गया आपका फ्लक्स, आई बात समझ में, ये हो गया आपका फ्लक्स। अब बात आती है कि ये जो है ये तो फ्लक्स हो गया, ठीक है। आपको एक तो फ्लक्स निकालना था, दूसरा आपको निकालना है ईएमएफ, ठीक है। तो चलिए अब ईएमएफ की बात करते हैं। ईएमएफ के लिए आप समझिए जरा ध्यान से कि ईएमएफ जो है, तो ई से डिनोट करते हैं, ई क्या होता है, ई होता है माइनस डी फाई बाय डी टी। क्या होता है, ई माइनस डी फाई बाय डी टी, और माइनस डी फाई बाय डी टी किसके इक्वल होता है, ये होता है माइनस बी एल वी, मोशनल ईएमएफ, जैसा कि हमने बात की थी, ठीक है ना, माइनस बी एल वी। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंडेंट है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, इट इज डिपेंडेंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंडेंट है बच्चों, तो डेफिनेटली ये जो है, ये केस कौन सा है, व्हेन 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू b, इस पर्टिकुलर केस पे ही होगा ये, ठीक है। यदि x इज ग्रेटर देन b हो गया बच्चों, तो ईएमएफ जो है वह क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि BLV की बात हो रही है, यहाँ आप देखिए इसमें B जो है वो 0 है, अगर B 0 है तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मोशनल ईएमएफ है ना BLV, अरे भाई B के बियॉन्ड तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी नहीं है, तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए हमने बात कर ली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, फ्लक्स के बारे में, ईएमएफ के बारे में। आगे क्या पूछा है आपसे पूछा है कि भाई करंट कितना होगा। चलिए करंट के बारे में, हालांकि करंट नहीं पूछा है, पावर पूछा है, पर पावर के लिए आपको करंट की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए करंट जो है वो होता है ईएमएफ अपॉन आर, आई इक्वल्स टू ई बाय आर, ठीक है। तो ईएमएफ कितना है आपका, BLV अपॉन आर। ऑब्वियसली ये किसके लिए हो रहा है, रेजिस्टेंस है आर, हाँ, आर PQ का रेजिस्टेंस है, हमने देखा था। और ऑब्वियसली ये किसके लिए हो रहा है, ये तब हो रहा है जब कि जो आपका जो x है वह क्या है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू b, है ना, इस केस में हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अगर ये इसके बियॉन्ड गया है, x इज ग्रेटर देन b हो गया, तो ऑब्वियसली करंट क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि ये b जो है ये b 0 हो जाएगा, तो ये इसको भी क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो करंट जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, इतना अगर अपने को आ गया, तो अब हम निकालना है, अपने को एक और निकालना है फोर्स। अब देखिए फोर्स क्या होता है, जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, इफ देयर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हिच इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो ध्यान रखिए कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो इस केस में फोर्स होता है BIL, साइन थीटा होता है, थीटा 90 होता है, साइन 91 हो जाता है, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। तो BIL जो है यह एक्चुअली इसका फॉर्मूला है। अब फिर से बात आएगी कि भैया इस वाले रीजन में x इज ग्रेटर देन b में तो करंट ही 0 है,
तो x इज ग्रेटर देन b में तो ये फोर्स भी जीरो हो जाएगा। पर जब ये x इज जीरो इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू b है, तो ये क्या हो जाएगा, b I क्या हो जाएगा, I है आपका BLV अपॉन R, BLV अपॉन R, ठीक है। तो ये दे देगा आपको b स्क्वायर LV अपॉन R, तो फोर्स कितना आ जाएगा, b स्क्वायर LV अपॉन R, दिस इज द फोर्स। ये आ गया आपका फोर्स की वैल्यू, ठीक है। इस तरह से आप फोर्स निकाल सकते हैं। अब लास्ट वैल्यू और है इसमें, वो पूछी है क्या, वो पूछा है पावर। अब पावर जो होती है वो होती है I स्क्वायर R, क्या होती है, I स्क्वायर R। I तो आपका ये रहा है ना, I क्या ये रहा आपका BLV अपॉन R, तो इसका स्क्वायर कर देंगे b स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R, और इनटू R कर देंगे, R से R, अच्छा R स्क्वायर आएगा तो एक स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो पावर आ जाएगी b स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R। पर ये पावर फिर से केस कौन सा होगा, जब ये यहाँ तक है, उसके बियॉन्ड जो है पावर डिसिपेशन जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें तो करंट ही फ्लो नहीं होगा, तो पावर की तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है कि नहीं। तो ये जो है पूरा, ये अभी तक जो अपन ने पढ़ा है, ये पूरा एक्चुअली था एक न्यूमेरिकल जिसकी थ्योरी हमने देखी है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ये जितना भी डिस्कशन हमने किया है इन सब का हमें ग्राफ प्लॉट करना है ना। अभी पिक्चर बाकी है, ठीक है, ओके। तो अभी आपको क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। अब मैं चाहूंगा कि इस यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, जो मैंने गलती की है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ BIL था, B तो मैंने लिखा, करंट जो है, करंट यहाँ पर BLV बाय R है, ये रखूंगा BLV बाय R, ठीक है। तो B तो आपका ये था, और करंट है BLV बाय R, तो B इंटू B, B स्क्वायर हो गया, है ना। और करंट रखा BLV बाय R, इसके अलावा ये L भी आएगा, ठीक है। तो ये L और L, L स्क्वायर हो जाएगा, तो ये B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R आएगा। ओके, वेरी गुड वर्षराज, बिल्कुल सही आपने पहचाना इसको, ठीक है। ये B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R आना चाहिए। चलिए बताइए, इतना सभी को समझ में आ गया है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो अब हम आगे इसके ग्राफ प्लॉट करना है ना। चलिए, तो अब मैं काम करूंगा, एक स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि मैं बीच में जब वैल्यू पूछूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वैल्यूज क्या हैं, क्योंकि बिना वैल्यूज के तो ग्राफ प्लॉट होगा नहीं। चलिए, तो जल्दी से अब हम करते हैं इसको। अब मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करूंगा अब मैं हटा देता हूँ पहले, तो इधर से हटा देता हूँ, है ना। और एक एक क्वांटिटी का ग्राफ प्लॉट करेंगे, बड़ा मजा आएगा। देखिए, मैंने इसलिए कहा था कि ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, पर कॉन्सेप्ट वाइज बड़ा मजेदार है। तो देखिए, इसकी जरूरत नहीं है मैग्नेटिक फील्ड की, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको किया था। सबसे पहले फ्लक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखिए, फ्लक्स का ग्राफ अगर आप प्लॉट करने जाएंगे, सबसे पहले फ्लक्स, तो फ्लक्स का ग्राफ देखिए, अब फ्लक्स का ग्राफ अगर आप प्लॉट करने जाएंगे, देखिए फ्लक्स यहाँ ले रहे हैं हम, फ्लक्स यहाँ ले रहे हैं, और इसके अलावा इस एक्सिस पे हम डिस्टेंस लेके चलेंगे, इस एक्सिस पे हम डिस्टेंस लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस लेंगे। अब आप देखिए, ये इस तरह से है, इस तरह से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, 0 से x इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे, b तक जाएगा, फिर उसके बाद में 2b तक जाएगा, फिर वापस b तक आएगा, और फिर फाइनली x इक्वल्स टू 0 तक आ जाएगा, है ना। समझ में आया ना, ऐसा जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, वापस यहाँ जाएगा, ठीक है। ये पूरा केस है। अब देखो, जैसे हम बात कर रहे हैं फ्लक्स की, तो BLX लिखा हुआ है। कहने का मतलब क्या है, कहने का देखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, तो समय के साथ में जो डिस्टेंस कवर्ड हो रही है वो यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो कवर कर रहा है, तो जो फ्लक्स होगा वो भी कैसा होगा, वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा। क्योंकि देखिए, समझना ध्यान से, ये जो x है ये यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, तो यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, तो ये एरिया भी यूनिफॉर्मली बढ़ेगा, तो BLX जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा। तो देखिए, ये जो है ये इस तरह से यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, जब ये x इक्वल्स टू b से 2b के बीच जा रहा है, अब देखिए ये जब इधर जा रहा है, तो भाई अब फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं आएगा,
क्योंकि अब ये एरिया बढ़ने से इसका कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि इसका जो लिंक्ड एरिया है वो तो इतना ही है, समझ रहे हो ना, मैग्नेटिक फील्ड तो इतने से ही पास हो रही है, तो लिंक्ड एरिया में कोई चेंज नहीं है और कोई चेंज नहीं है, तो ये सेम रहेगा यहाँ तक, और वापस जब आएगा तो यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, उतना ही रहना चाहिए, तो देखिए उतना ही है, यहाँ तक भी उतना ही है। उसके आगे क्या होगा, उसके आगे आप जब इस तरफ लेके जाओगे तो अब धीरे धीरे ये कम होने लगेगा और फाइनली डिक्रीज होगा, और वेलोसिटी जो स्पीड है हमने दोनों तरफ सेम रखी है, तो उसी रेट से कम होके ये वापस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं इस ग्राफ को। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस तरह से हम इस ग्राफ को समझ सकते हैं। 1 मिनट मुझे दीजिएगा, शायद आपको दिखाई दे नहीं रहा है ये, है ना, मैं थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ कैमरा को, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ कांस्टेंट हो गया और फिर ये जीरो हो गया, क्लियर है इतना। अब इसके बाद फ्लक्स के बाद में किसका करना है हमें, फ्लक्स के बाद में किसको प्लॉट करना है, फ्लक्स के बाद में हमें प्लॉट करना है ईएमएफ। चलिए अब ईएमएफ प्लॉट करते हैं। अब ध्यान से समझिए, ईएमएफ जो है, ईएमएफ के लिए हमने अभी जब देखा था तो क्या देखा था, हमने देखा था कि भाई ईएमएफ जो है माइनस BLV होता है ना, ये यहाँ तक के रीजन के लिए, और उसके बाद में जीरो हो जाता है, ठीक है ना, यही देखा था। तो इसको प्लॉट करें आप ईएमएफ को, तो देखिए अब ये इस तरह से गए हम, ईएमएफ जो है ध्यान से समझिएगा, ईएमएफ जो है ये माइनस BLV, ये ईएमएफ है। तो देखो बेटा यहाँ पर इस रीजन में तो ये माइनस चल रहा है और एक जैसे ही चलेगा माइनस BLV, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट, V भी कांस्टेंट, सब कांस्टेंट। तो ये कहाँ तक रहेगा, ये रहेगा ये B तक, देखो ये इस B तक ये कांस्टेंट रहेगा, है ना, B तक रहेगा कांस्टेंट। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में ईएमएफ जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं अब इसके बाद, ठीक है, L तो है, वेलोसिटी भी है। अच्छा बताइए जीरो होगा या रहना चाहिए, क्या होना चाहिए ईएमएफ में, कांस्टेंट हो जाना, फ्लक्स में चेंज। अच्छा देखिए ईएमएफ होता क्या है, ईएमएफ इज चेंज इन फ्लक्स, समझना ध्यान से, ईएमएफ होता है चेंज इन फ्लक्स। अब एक बात बताओ, यहां तक पहुंचने के बाद में अगर आगे ले जाओगे तो फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। अभी तक क्या हो रहा था, फ्लक्स में चेंज हो रहा था, इसलिए ईएमएफ जनरेट हो रहा था। अब यहां पर फ्लक्स में चेंज नहीं, तो B से लेकर 2B तक कोई चेंज नहीं आएगा, फिर 2B से वापस अपन लेके आएंगे B तक, तब भी कोई चेंज नहीं होगा। B के बाद में क्या होगा, B के बाद में ये होगा कि जब आप इसको इधर लेकर आओगे तो B के बाद में ये डिक्रीज होगा। अब डिक्रीज होगा तो ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो देखो इसके बाद जो है यहाँ पर ये ईएमएफ इस डायरेक्शन में क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, है ना, और फाइनली क्या हो जाएगा, x = 0 पर ये वापस आ जाएगा। तो इस तरह से ये ईएमएफ के लिए आप प्लॉट कर सकते हैं, है ना, ये माइनस E हो गया, ये माइनस E हो गया और ये प्लस E हो गया। इधर आप ईएमएफ लिख सकते हैं कि भाई x एक्सिस पे ईएमएफ, ठीक, इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। अगला है, इतना समझ में आ गया सभी को, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अगला है इसका फोर्स। चलिए तो फोर्स अब हम देख लेते हैं। फोर्स जो है उसका एक्सप्रेशन हमने अभी देखा ही था। फोर्स क्या था, अब मैं इसको हटा देता हूँ, है ना, ये वाले को हटा देता हूँ, तो यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करते आ जाएगा, ठीक है। ईएमएफ का है ये तो आपको पता ही है ना, इसमें अब यहाँ पर था ईएमएफ, यहाँ से यहाँ, चलिए ये हो गया कंप्लीट और ये कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए फोर्स पे। तो ये फोर्स अगर हम देखते हैं, देखिए फोर्स इधर ले रहे हैं हम, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है, हमने निकाला था B² L² V² L² V/R, यही लिखा था ना हमने, B² L² V/R, ये हमने फोर्स का एक्सप्रेशन निकाला। ऑब्वियसली 0 से B तक था, B के बियॉन्ड 0 हो जाता है, आपको पता है कि B के बियॉन्ड 0 हो जाता है वो, ठीक है, ये हमने इतना देखा हुआ है, ठीक है, कि B के बियॉन्ड जो है, स्मॉल b के बियॉन्ड जो है वो 0 हो जाता है, ठीक, और वापस फिर B के इधर आएगा तो फिर से फोर्स लगेगा। तो अब देखिए फोर्स जो है वो क्या है, B² L² V/R है, लेकिन ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव फोर्स है,
क्योंकि वो आप ईएमएफ का साइन BVL में ईएमएफ का साइन रखेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो शुरुआत में देखिए ये ऐसा है, नेगेटिव है यहाँ तक, बी तक। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में यहाँ तक तो जीरो है, कोई चेंज नहीं है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं वहां पर, तो फोर्स नहीं लग सकता। और उसके बाद जो है अपोजिट डायरेक्शन में इधर बढ़ जाएगा ये इस तरह से, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। पहले ये नेगेटिव था, माइनस फोर्स था, और इधर जो है ये पॉजिटिव फोर्स हो जाएगा, ठीक है। और मैग्नीट्यूड जो इसका ये रहेगा B²L² V/R दोनों केस में, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्स। लास्ट जो बच रहा है, लास्ट जो है वो है पावर। अब पावर की भी बात कर लें तो I²R है, और आप अब पावर आप खुद कर लीजिएगा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। बस एक चीज रहेगी कि पावर में दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। देखिए ये भी पॉजिटिव रहेगा पावर में और ये भी रहेगा, ये फोर्स है। क्यों? क्योंकि पावर I²R होता है, करंट का स्क्वायर। अगर करंट का स्क्वायर है तो करंट की डायरेक्शन उसमें चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। I²R, करंट की डायरेक्शन उसमें चेंज नहीं होगी, और डायरेक्शन यदि चेंज नहीं होगी तो दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव रहेगा और इस वाले में पॉजिटिव, बीच में तो जीरो है ही क्योंकि करंट ही जीरो है। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।